Welcome, welcome, welcome to Gyan Sarovar, the lake of knowledge. Enjoy this yogi tour and time for reflection and contemplation. Enjoy reconnecting with familiar faces, familiar buildings, the trees, the plants, the flowers, the birds, the beautiful nature in the campus and all around. Whilst in the gathering, Baba, you and I have a very private and personal relationship, something that only we know about. So let me take a moment now to reflect on the wonder
of this subtle relationship with Baba, with this secret life I have with you. Now let's go and take some inspirations from a very special soul.
Om Shanti. Welcome to Madhuvan. I'm sure you must be missing Madhuban, but we are welcoming you virtually. As all of us have a secret spiritual life and subtle life with Baba, the Supreme Soul. Baba has given us so much imperishable treasures. As a father, He's giving us full imperishable inheritance for 21 generations. As a teacher, Baba is giving us knowledge of soul, Supreme Soul, karma, kalpatri, and everything, making us knowledgeful. As a guide, Guru, he gives us liberation from sorrow, suffering, and Kali Yuga. As a friend, we are able to share everything. Happiness, sorrow, suffering, achievement, loss, everything. As a husband, he is always with us to protect us. As a mother, he is there to clean us of all impurity. As a child, we are able to give him everything that we possess. Baba has helped me a lot, given me courage, given me self-respect. I really didn't know my speciality, but Bap Dada gave all titles and helped me to have so much courage that I could tour around in many different countries by myself without having center, BKs, no relatives or friends. So, Baba is my constant companion and combined giving me strength to face obstacle, situation, etc. So I'm sure all of you will be also having so many relations and so many experiences with Baba. So we love Baba, Madhuban, and Murli. Hope you are able to come to Madhuban soon. People from Middle East have already started coming from Dubai, Doha, Abu Dhabi, etc. And Santosh Ben of Russia is also coming in October. India will issue tourist visa soon. Hope your country gives you permission. Om Shanti.
my subtle and secret life with God. Provides me with various options to connect with Him in many relationships. Out of all the relationships I have with Baba, which one gives me the most support? How does Baba reach out to me and let me know that He is there? शांति। वैसे जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा के साथ हर परिस्थिति में हमें बाबा को यूज़ करना चाहिए। मैंने अनुभव किया 2008 में मुझे कैंसर हुआ था, तो बाबा के साथ मैंने खूब बातें की और बाबा के साथ रोरियान करके कई बार बहुत शरीर में बहुत दर्द होता था कीमोथेरेपी के कारण। तो मैं बाबा के साथ बात करता था, बाबा ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूँ और जो कुछ करना है आपको करना है। और दूसरी बात कि जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है तो हमको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना बाबा के ऊपर, क्योंकि ऐसा समय था कि मैं करीब करीब 25 वर्ष बाबा की सेवा में तन मन धन पूरा लगा दिया था। उसके बाद ये कैंसर जैसी एक भयानक परीक्षा मेरे ऊपर आई, तो उस परिस्थिति को हंसते खेलते मुझे उसको कैसे उससे फ़ायदा लेना चाहिए वो मैंने
अंदर अंदर सोचा, बाबा के साथ बात की, और जो मेरे पास पेंडिंग वर्क था, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, होता था जब सेवा करते थे, तो बीमारी के समय जो मेरे पास जो मुझे कुछ करना था वो मैंने किया। उसमें मैंने बहुत सारे ड्रिल किया कि यहाँ से परम धाम जाना, परम धाम से वापस आना, ऐसे हजारों बार मैंने ड्रिल किया। और उस समय मैंने यह अनुभव किया कि कैसे जो दर्द होता था उसमें हमें रिलीफ मिला, उसमें मुझे दर्द कम हुआ। तो ये बाबा की कमाल थी कि बाबा हमें कैसे मदद करता है। दूसरी चीज़ हमने देखा, अगर उस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है, हमें पूरे जीवन के लिए फ़ायदा होता है। तो एक तो मुझे बाबा के साथ बातें करने से, एक रोहरियान करने से मुझे ये दर्द में बहुत रिलीफ मिला। और दूसरा, उस बीमारी का मैंने ये फ़ायदा लिया कि मेरी जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे मुझे लिटरेचर पढ़ना था वो मैंने पूरा पढ़ा, साथ साथ जो अलग अलग अभ्यास थे वो मैंने किए। और सबसे ज़्यादा बीमारी के समय मैंने वो अभ्यास किया कि यहाँ से परमधाम और परमधाम से वापस आने का। तो उस समय मुझे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात है कि लौकिक परिवार में भी इससे ये फ़ायदा हुआ कि कई लोग ज्ञान में चले, 4 तो उसकी ब्रह्मा कुमारी बनी इस पीरियड में। तो कभी कभी मैं बाबा को अब अंदर अंदर बात करता हूँ, बाबा आपने मुझे ये बीमारी थोड़ी, ये तो जैसे गिफ्ट दिया। क्योंकि एक बार मुझे याद है, कमरे में बैठा था तो बाबा की मुरली चली थी शांतिवन में। मैंने बाबा से बात किया, बाबा आप इतने हजारों लोगों को मुरली सुनाओगे, मुझे नहीं सुनाओगे? तो बाबा ने मुझे 1.25 घंटा मुरली सुनाई। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो अनुभूति हुई, और बाबा जैसे कि मुझे डायरेक्ट आके मुरली सुनाई। तो ये जब हम आंतरिक यात्रा करते, बाबा के साथ बातें करते, तो बाबा हमें बहुत मदद करता है, पल पल मदद करता है। ये मैंने जीवन भर अनुभव किया। और वर्तमान समय भी बाबा के साथ मिलना, बात करना, रोहरियान करना वो चालू है। और बाबा मुझे हर पल पे शक्ति भी देता है। तो ये जो आंतरिक, जो बाबा के साथ जो जर्नी करते, बाबा के साथ जो मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उससे हमें बहुत शक्तियाँ मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन तो सबको जाना ही है, तो शरीर के लिए डरना नहीं है कि मुझ क्या होगा, कैसे होगा, उसमें हमारा टाइम जाना नहीं चाहिए। जो समय मिला उसको यूज़ करना है और अपने जीवन को परिवर्तन करके, क्योंकि समय बहुत कम है। और समय कम है तो इस समय कम होने से, इसी से मुझे जीवन में अच्छा से अच्छा क्या करना है वो हमें सोचना है। ओम शांति। Baba is always available for me. But do I reach out and speak to him? Do I offload the burden of my heart? Do I use this connection that I have with Baba to the maximum? Let me spend a few moments now sharing what is in my heart currently in a very subtle way with my secret friend.
शांति। जब हमको बाबा ने ढूंढ ढूंढ के जंगलों से, समझ लीजिए गांव से ढूंढ करके अपना बच्चा बनाया है, उसका बाद में हमारा पालन पोषण बाबा ही करता है। खान पीन, देखभाल, सुताना, उठाना, सब जगाना, जो भी है, सेवा करने का तरीका बताना, ये सब बाबा करता है। इसी में हमको इतना खुशी होती है कि अंदर अंदर में जो बाबा मिला, हम निश्चिंत जीवन हो गया। उसका बाद में हमारा कई प्रॉब्लम आई, समस्या आए, हम बाबा को भरोसा में छोड़ देते, बाबा हल कर लेता है और हम बेफिक्र रहते हैं। और हम अकेला नहीं, हमारा सब परिवार ही बेफिक्र रहते हैं। तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा उस वक्त में 1995 की बात है। तो उसमें हमारा नेपाल में वो उग्रवादी का खूब चल का था। तो उस वक्त में हमारा घर में सब लोग तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा का घर में सब डरते हैं बाबा का घर में आने में। तो उसमें वो 10 या 12 ऐसे कोई कन्या आ गई कि हमको खाना दो, हमको माता जी खाना दो। तो उसमें माता जी ने बोला, मैं तो तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना बनाओ, वहीं पर आटा है, चावल है, बना के खाओ, और मैं तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। ऐसे बोल करके माता ऊपर बाबा का कमरा तरफ चल गए, ऊपी छिपने के लिए बाबा कमरा में गए। तो बाबा कमरा में गए तो उन्होंने बाबा को, फोटो था बहुत सुंदर, ये भाई साहब ने बनाया वाला, तो वो फोटो देख करके उनका आँख से जब ज्योति निकला ना, वो तो डर ही गए, अरे माता ये कौन है? तो बाबा ने, माता ने बोली, ये तो जैसे तुम परिवर्तन करने के लिए उग्रवादी बन करके राजा को हटा करके प्रजातंत्र लाना चाह रहे हो ना, वो यही से ये भी कली को हटा करके सतयुग लाने के लिए ये आया है धरती पर। यहाँ नहीं बैठना है, ये तो कोई खतरा लगता है, इस जगह पर हमारा लायक नहीं है, बोल करके वहाँ से निकल गया। तो वहाँ से निकल गए वो बहन, उसके 5 मिनट के बाद में आर्मी वाला आ गया तो उसमें वो घर को घेर, तो वो नहीं भागते हैं ना, वहाँ पर फोन खच्चर हो जाता, हमारा घर को तोड़ फोड़ भी कर देता। तो ये वाला जो बाबा ने हमको अनुभव कराया और सब परिवार सुरक्षित रहे, गांव वाला भी अभी अभी देखते हैं, इसका पास में क्यों कोई नहीं जाते, जो काम का चीज़ होगा वही जाते। ऐसा मदद हमको ये मधुबन में जब समर्पित होने का वो हुआ, इस वक्त में उन बाबा ने इतना मदद करा, खुद बोला करके यहाँ लाया, सेवा कराया, समर्पित कराया। अभी मेरा यहाँ 29 साल हो गया, यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ बाबा का। ये बहुत बाबा का मदद समझ लीजिए, जो बाबा का बन जाता है ना, वो दुख से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही कई अनुभव है। हम तो सब भाई बहनों को भगवान का बनी जाओ, कलयुग का लास्ट है, तो जो बाबा का बनेगा वो शांति से अपना जीवन भी बिताएगा, शांति धाम में भी जा सकेगा। और तो कोई उपाय मैं नहीं देखता हूँ। In today's crumbling, chaotic world, what safety does my relationship with Baba provide me all the time?
ओम शांति। ये जो आप सब देख रहे हैं, ये आदरणीय दादी जानकी जी पार्क का ये ऊपर का हिस्सा है और इसमें हमने 600 प्लांट लगाए हुए हैं फलों के, और फ्लावर आप सब देख ही रहे हैं। तो ये इतना, इसमें कीवी है, अनार है, एप्पल है, अंगूर है, अंजीर है और मौसमी है, सहतूत है और आवोकाडो के हैं 17 पेड़। तो ये सब वैरायटी फल आप सब देख रहे हैं और फलों के पेड़ ही लगाए हैं और काफ़ी कुछ उतरने भी लगे हैं। पिछले दिनों लीची थी तो हमारे आदरणीय लंदन से गोपी बहन, मंदा बहन जी आए। हमने कहा दादी जी की याद आ रही है, आप अपने हस्त कमलों से ये फलों को तोड़ो, तो उन्होंने लीची तोड़ा और मैंगो भी काफ़ी इसमें वैरायटी है। तो मम्मा डे पे हमने ये तोड़ के आदरणीय दीदी निर्मला दीदी जी को कहा, ये दीदी दादी जानकी पार्क के फल आए हैं। फिर दीदी जी ने भोग लगाया और बहुत खुशी होता है। और आप ये सब देख ही रहे हैं, ये सब कुछ समय पहले तो यहाँ जंगल ही था। हमारे ज्ञान सरोवर के भाइयों ने बड़ी मेहनत किया, झाड़ झनखाड़ सब हटा के और ये सब साफ किया और इसमें सब फलों के ही पेड़ लगाए। और आज सबको खुशी देता है ये स्थान। इस स्थान पे आदरणीय जयंती दीदी जी ने आके प्लांट लगाया लीची का, और हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने अंगूर का प्लांट लगाया। हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी ने लीची का पेड़ लगाया। हमारे आदरणीय लक्ष्मी बहन, जो जिनका मैं निकाला हुआ बच्चा हूँ, जो वर्तमान समय सोनीपत के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आके यहाँ प्लांट लगाए। हमारी मोरिन बहन ने ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये उन्होंने लगाई। ये एप्पल के प्लांट है, ये कीवी लगाई है 50, ये चंपा के पेड़ हैं और ये आप फ्लावर सब देख ही रहे हैं। और वैरायटी फलों के प्लांट हैं। यहाँ काफ़ी भाई बहन आके और बहुत प्रेरणा लेते हैं और यहाँ शाम को योग करते हैं, ऊपर झूले लगे हैं, सबको एकांत अच्छा लगता है और बड़े खुश होते हैं। ये मैंगो पेड़ हैं, इसमें जी ये मैंगो पेड़ हैं, बहुत मैंगो लगते हैं। ये कीवी के पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब बेलें चल पड़ी हैं। तो ये बाबा का कमाल है जी। और करन करावनहार तो बाबा है और हमारी आदरणीय दादी जी का प्यार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलाता रहता है। और जब भी अमृत वेला में दादी का इतना प्यार है, दादी ने मुझे गले लगाया, प्यार किया, सिर पे हाथ रखा, दादी ने ये रिंग डाला, तो मेरे को दादी ऐसा फोर्स भर देती है कि मैं उठता ही रहता हूँ। और सिर्फ इतना पार्क की बात नहीं है, पूरे माउंट को ही सजाना है। ये भगवान की कर्म स्थली है। पूरे माउंट के अंदर इतना फूल ही फूल लगाया है, जो आप देखेंगे पांडव भवन के पीछे बहुत बड़ा रोज गार्डन है, पूरा नक्की का राउंड, जितना भी गंद कचरा जहाँ भी था शहर में, सब नगर पालिका के साथ मिलके हम अच्छा कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर होता जा रहा है, जिससे बाबा का नाम हो रहा है और खुशी होता है। और बड़ों की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं बहुत मिलती हैं। और ये आप सब देख रहे हैं जी, ये ऊपर का साइड है और ये सब वंडर है बाबा का जी। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि किस तरह बाबा करवा रहा है। और इतना सुंदर ये पौधे, फूल, फल और वैरायटी हैं, जो सब देख के प्रेरणा लेके जाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की साइड में भी, ऊपर अमरूद के पेड़ों पे अमरूद लगे हैं अभी तो वर्तमान समय। और इतना सुंदर वातावरण ज्ञान योग के मतलब का है। और सारा दिन मुझे खुशी रहती है और उमंग उत्साह रहता है। जितना पौधों से प्यार मेरे को बहुत है। ये 5000 पेड़ लगाए हैं टोटल माउंट में और तैयार किए 20 जुलाई 2013 को।
एक राजस्थान हरित क्रांति के नाम से अभियान था, तब से शुरू किया और करते, और सिर्फ उनको लगाया ही नहीं, उनको पाला भी है, जिससे गवर्नमेंट ने 10 बार सम्मानित भी किया। जिला सिरोही कलेक्टर ने, एसडीएम साहब ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो दिन रात एक ही रहता है, हम अपने माउंट को स्वर्ग जैसा बनावें और बाबा का नाम रोशन करें। तो इस तरह बाबा अपनी सेवाएं करा रहा है। और इस सेवा को देख के भी हमें एक भाई ने 30 बीघा नीचे ज़मीन दिया, उसको भी हमने ठीक किया। उसमें हमने काफ़ी, एक ही साल हुआ है, और उसमें भी हमने 600 आम लगाए, उसमें टमाटर लगाए, अभी वैरायटी वहाँ फल लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं। ऐसे करके बाबा अपना कार्य किस तरह से करवा रहा हो तो बाबा ही जाने, लेकिन मुझे बहुत उमंग, उत्साह और खुशी रहता है कि जब ऑलमाइटी मेरे साथ है तो असंभव कार्य भी संभव होते जा रहे हैं और होंगे ही। और सारे ब्राह्मण परिवार की बहुत दुआएं मिलती हैं और मैं अथक रहता हूँ, उमंग उत्साह से रहता हूँ और बड़ा उड़ता रहता हूँ और औरों को भी उड़ाता हूँ कि भाई ऐसा मौका फिर आएगा ही नहीं। ऑलमाइटी हमारे साथ है, अभी जो करेंगे एक का पदम गुणा मिलेगा, अब नहीं तो फिर कभी हम अपना भाग्य बना नहीं पाएंगे। इसलिए भाग्य बनाने के ये संगम के दिन यही है, और कर लो जो करना है, अब नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। It's now or never to make the impossible possible. Let me use the secret connection I have with the Almighty to bring me success at every step.
ओम शांति। मेरा नाम घनश्याम है और मैं ज्ञान सरोवर में रहता हूँ और आर्ट गैलरी में सेवा करता हूँ। ऐसे ही मेरा एक रूटीन था कि रोज़ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। तो डेली रूटीन के अनुसार 26 दिसंबर 2016 को मैं ऐसे ही रूटीन के अनुसार वॉकिंग पे जा रहा था। तो वॉकिंग पे सुबह 6 बजे करीब जब मैं वापस वॉकिंग करके और ज्ञान सरोवर जैसे लौट रहा था, तो ज्ञान सरोवर के नज़दीक ही मेन रोड पे ही हल्का अंधेरा था, दिसंबर का महीना था, तो रोड के नज़दीक ही भालू खड़ा हुआ था। तो हमने उसको देख नहीं पाए और हल्का अंधेरा होने के कारण देख नहीं पाए। तो जैसे मैं उसके नज़दीक पहुंचा, उसने अचानक मेरे ऊपर हमला बोल दिया और जैसे उसने हमला बोला तो उसने हाथ से मेरे ऊपर ऐसे वार किया और जैसे मैं नीचे ज़मीन पे गिरा और ज़मीन पे गिरते वो मेरे ऊपर आया और आके उसने सिर को पकड़ लिया और सिर को खाने लगा। और जैसे उस सिर को खाने लगा तो मेरे को बहुत पेन होने लगा और जैसे मेरे को पेन होने लगा तो मैं एकदम बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। ऐसे मैं चिल्ला रहा था कि एक छोटा भालू एक और आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो हाथ को चबाने लगा। फिर एक और आया, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। तो 3 भालू एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक सिर के ऊपर खा रहा था और तीनों के लगे हुए थे और मेरे को बहुत एकदम पेन हो रहा था, पूरा खून हो गया था। तो ऐसी खून की स्थिति में ही मैं वहाँ से तो चिल्ला रहा था। ऐसे ही चिल्लाते ही अचानक ही देखा कि वो एकदम ऐसे धीरे-धीरे इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे को बहुत पेन हो रहा था और करते-करते ही 1-2 मिनट ही हुआ होगा कि मैं बाबा, बाबा, बाबा बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। ऐसी स्थिति में था कि अचानक ही बाबा ने ऐसा कुछ कमाल किया कि वो तीनों के तीनों मेरे को छोड़कर ऐसे ही रोड पर जाने लगे और जैसे वो जाने लगे तो मैंने देखा कि ये तो तीनों चले गए। तो मेरा पूरा सिर का जो खाल थी वो निकल गई थी, पूरा गाल लटक गया था और पूरा हाथ फाड़ दिया था, पैर फाड़ दिया, पूरा खून में नहा लिया था। तो ऐसी स्थिति में भी बाबा ने मेरे को बहुत मदद किया और मेरे को ऐसा संकल्प आया कि मैं खड़ा हूँ। तो जैसे मैं खड़ा हुआ और फिर मैंने एक हाथ से मेरे को पूरा सिर को ऐसे पकड़ा, एक हाथ से गाल को पकड़ा और ऐसे मैं चलने लगा और धीरे-धीरे मैं रोड तक पहुँचा और रोड से मैं ज्ञान सरोवर की तरफ आने लगा और ज्ञान सरोवर पे जैसे ही पहुँचा तो मेन गेट पे एक भाई को मैंने बोला कि मेरे को भालू ने अटैक किया है, मेरा नाम घनश्याम है। क्योंकि कोई मेरे को पहचान नहीं पा रहे थे, पूरा मैं खून में नहा लिया था, तो पहचान नहीं पा रहे थे। तो उस भाई को बताया मैंने कैसे मेरे को भालू ने अटैक किया। फिर वो भाई अंदर गया फटाफट, फिर हमको गाड़ी लेके आया, फिर गाड़ी में डाला और फिर हमको ग्लोबल लेके गए। तो ग्लोबल जाने के बाद फिर हमको ट्रीटमेंट चालू हुआ और बहुत जल्दी ही बाबा की मदद से मैं ठीक हो गया। Baba, Baba, Baba. He is my only one. Is my subtle relationship with Baba so strong that my thoughts go to him whenever I face difficulty in my life? Is he the first one that I reach out to?
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय Om Shanti. Greetings from South Africa to all our brothers and sisters in the world, and especially to those that are in Madhuban. We miss you. The last year and two have been very difficult for everyone, but we have found when you go into remembrance in an instant, Baba is there and reduces the suffering and brings back the love and the joy. It's Baba's love that brings meaning to our lives, light and power. Baba leads us out of ignorance, out of darkness to light, from death to immortality. Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya
मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 Baba leads us from ignorance to truth, from darkness to light, and from death to immortality. Baba
fix my mind on you. It's all I need to do to free my mind from pain and sorrow. I give this life to you. It's all I want to do. I surrender to you. Man mana baba madhya jibab. Man mana baba madhya jibab. I rest my mind on you. It's all I want to do. I give this life to you. I surrender to you. Man mana baba madhya jibab. Time is here to see the way I see you, a shining light, immortal and eternal. I'm right here by your side, whispering the truth.
The time has come to shed your earthly garments, to take your place as masters of time and space. There's nothing left to fear. Just take my hand and I will lead you back home. Spread your angel wings and fly. The gravity of love will take you higher. This I promise you, my child. The time has come. We're all going home. Going home. We're all going home. Spread your angel wings and fly. The gravity of love will take you higher. This I promise you, my child. The time has come. We're all going home. Om Shanti. Om Shanti. And as we step out of the lake of knowledge, we carry with us these beautiful feelings, inspirations, and experiences. And we wait to be able to return very soon in person to this beautiful home. Om Shanti.